as we know, as a power engineer or as an electrical engineer, you are mainly a power system engineer, power engineer. As a power engineer, there are three roles. One is the सर ने बोल दे माइक generating बंद हो गया side, सर का। please keep quiet. Another is at the transmission side, another is on the distribution side. Then it can be as a utilization side. But as a power engineer, there बोल are दे three तो। roles: generation, transmission, and distribution. And distribution side, there is a load connected, and load is mainly controlled by the consumers, and that is not in our hand. Load is always changing. Only we can predict what is the load. That on the basis of the load forecasting, we can have some idea what is the load going to be held at particular instant of time. Say at particular 9 a.m. the load is going to be 100 megawatt. Then it is a responsibility of the power engineer to supply that 100 megawatt. Okay. Now there are two very important roles other than others. Several roles are there, but mainly there are two roles. That one, it should have a constant voltage profile throughout the control area. If you are a power engineer and sitting at the Power Grid Corporation of India, it is your responsibility to have the voltage to be 1 per unit throughout the whole grid, 1 per unit. Similarly, if the frequency has to be or is supposed to be held 50 hertz, so this is the main role. Other than the economic, quality, reliability, security, they all are the secondary issues. Primary issue is first you have to maintain the constant voltage and constant frequency. This is the rule. And consumers are going to be disturbed. All these factors, they are because load is being continuously changing. If load is changing, active power is changing, and you are not supplying that active power, then how these parameters can be maintained. Now there are two things. One is the frequency power, and another is the active power, and another is the reactive power. इशारा कर दे As a power engineer, you have the two things: माइक voltage दिखा and दे। frequency, and they are related with the active power and reactive power, because either active power is changing or reactive power is changing. There are माइक two बंद है types. सर आप। माइक बंद। This power is changing or reactive power is changing. On the basis of that, frequency is going to change or voltage is going to change. Now, so at the generating station, what is the main component at the generating station, other than various transformer, control circuitry, everything is there, but other main component is the synchronous generator. So it is the synchronous generator from where we take the active energy, active power, and from there also we control the reactive power also. Means from here only we control the voltage and frequency. So first of all, we have a certain review of the synchronous generator. Although you have studied the electrical machine 2 in detail, आपने पढ़ा हुआ electrical machine 2, that is the synchronous generator, synchronous motor, you have been studied very much detail as a one course. But since we are going to start, and this chapter is very much related to this, so that's why we have a just review of what we are going to study this in very much detail. Now you see, this is a synchronous generator. Synchronous generator, it means it is a shaft. From the shaft you are giving the mechanical energy here with the help of the turbine, etc. Turbine is there, and turbine is running with the help of some. It can be a thermal turbine, it can be a hydro turbine, or any type of turbine. Accordingly, there will be input, and that energy is converted into mechanical energy. And mechanical energy, when you put into the type of rotor, then it converts the electrical energy. Means when the rotor is rotating, there is a field here. And when this is rotating in the field, there is a rate of change of flux induced EMF, and this EMF is obtained here. And this is the equation: E is equal to V plus J IE access. This you have studied so many times. This is the voltage, E is the access, this voltage here E, and this, if depending upon what is the load connected here, there will be current IA, and this IA will have
some power factor depending upon the type of nature of load. Depending upon the nature of the load, there will be magnitude and the angle of this current. And so this equation V is the terminal voltage, V plus J IEXS is equal to E. This is our equation for this machine. Now, if you draw the phasor diagram of this E is equal to V plus J IE, this is the V terminal voltage, and this is the current. Current is lagging power factor here. We consider the lagging power factor here, current. So here you see IE axis will be perpendicular. This is I perpendicular to this. There is IE axis. Okay. So this is a V IE axis, and what is this? This is the E. Okay. ये आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. Now you see, suppose this current in place of this lagging current. Suppose this is the unity power factor current. अगर ये lagging की जगह unity power factor current है, current can be anything. So you see this, and we consider here what we are in this phasor diagram we are considering, say power is constant. So power is equal to VI cos phi. Power is VI cos phi. If we consider, say, voltage is constant, we have to maintain the constant voltage. For example, then I cos phi has to be constant for a particular value of power. If we want to control the voltage, then I cos phi has to be constant. And it means this is angle phi. What will be the I cos phi? This from here to here it will be I cos phi. Perpendicular of this into this will be I cos phi. Okay, it means this I can be here, it can be here. So this is the locus of the I. This is the locus of I, means I can be here, or anything here like this I. And second thing is power is equal to this formula you also know, PV by X sin delta. पढ़ा हुआ है क्या नहीं? Last time we बताया था power is equal to V by X sin delta. So it means if we consider voltage, E sin delta is constant, and delta is this. Delta is the, as you told, angle between V and E is the power angle. So E sin delta, this is E, or this is E cos delta, E sin delta, it is constant. Okay, it means this locus of I is constant, locus of E is constant. Fixed. Now for example, suppose the current in place of this lagging current is unity power factor. For example, if it is a unity power factor, what will be the I cos phi? This IX. अगर I ये हो गया तो I axis क्या होगा? I axis will be perpendicular to this. यही होगा कि नहीं होगा? If this is a I, so this will be IX, JIX. So if it is a V, it is a IX, and what is the E? E क्या होगा? E होगा. E हो जाएगा ये. Is this clear or not? Now, suppose current is leading. अगर current अब आपका leading है. Now current is leading. Current is this leading. What will be the IE axis? JIE axis. अगर current ऐसा है और this is the terminal voltage V, तो IE axis क्या होगा? IE axis हमेशा IE axis will be perpendicular to the current. है कि नहीं है? IE axis has to be perpendicular to the current. अगर ये current है तो IE axis क्या होगा? इसके perpendicular होगा. ये होगा कि नहीं होगा? JIE axis. अगर ये वोल्टेज है V, दिस इज ए JIE axis, तो E क्या होगा? दिस वोल्टेज E. ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है. Now you see, if current is lagging, it is shown with the blue line. If the current is lagging, excitation voltage is E. If the current is leading, we have to maintain excitation is equal to this normal excitation. It is not normal excitation. It is shown by the red line. If we have to, current is leading, our excitation has to be equal to less than the normal. So this is shown with the black line. Okay. इससे क्या कंक्लूजन निकला? इफ देखिए
Please listen. This is very important line which I am telling you. You see, please. If the current is lagging, we have to over excite the generator. अगर लैगिंग आपका करंट लैगिंग कौन करता है? करंट लैगिंग होगी, लीडिंग होगी, किस पे डिपेंड कर रहा है? लोड पे डिपेंड कर रहा है। लोड किस पे डिपेंड कर रहा है? कंज्यूमर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एज ए पावर इंजीनियर आपके कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ करंट इज लैगिंग, करंट इस टाइप का आ रहा है, उस समय ये ओवर एक्साइट होना चाहिए। अगर जनरेटर शुड बी ओवर एक्साइटेड। और अगर करंट हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल लोड है, नॉर्मल मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है, तो एक्साइटेशन कितना होना चाहिए? नॉर्मल एक्साइटेशन होना चाहिए। इफ द करंट इज लीडिंग, तो एक्साइटेशन कैसा होना चाहिए? कम, अंडर एक्साइटेशन होना चाहिए। तो ये एक्साइटेशन कंट्रोल करना किसके हाथ में है? पावर इंजीनियर के हाथ में। तो दिस इज योर रोल कि यू हैव टू कंट्रोल द एक्साइटेशन, you have to control the excitation depending upon the load is lagging, leading और normal। जैसा भी लोड हो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्साइटेशन कंट्रोल करना है। दिस इज द रोल ऑफ पावर इंजीनियर। नाउ क्वेश्चन इज इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस, अगर आपने लोड के हिसाब से एक्साइटेशन को कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाएगा? इसमें सोच कर बताओ। इसको फिगर को देखो और ये इक्वेशन देखो। नाउ यू टेल व्हाट विल हैपन इफ यू फेल टू प्रोवाइड द एक्साइटेशन एज पर द लोड, देन व्हाट विल हैपन? हाँ बताओ, कौन बताएगा? हाँ आप बता सकते हो? आपका एक्साइटेशन देखो, एक्साइटेशन तो आपका इतना है, ठीक है? और करंट लैगिंग ये थी, करंट लैगिंग ये थी। इसका मतलब क्या है? करंट के परपेंडिकुलर ही आई एक्सेस होता है। आई एक्स विल बी परपेंडिकुलर टू द करंट। तो करंट ये है, ठीक है? इसके परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब यहां से इसके परपेंडिकुलर, ऐसी तो होगा ऐसा इसके परपेंडिकुलर ऐसी तो होगा। यस सर। तो नाउ प्लीज सी, देखिए ढंग से ध्यान दो बस। केवल ई तो आपने कंट्रोल नहीं किया, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द ई आपने कब रखा, और आई एक्सेस तो इसके साथ परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। तो क्या हुआ आपका? अब ये क्या बन गया? ये वाला फिगर बन गया। तो इससे क्या पता लग रहा है? इस फिगर से क्या पता लग रहा है? वोल्टेज कितना दी, टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ जब ये वाला फिगर था, बिलू देखो, जब ये वाला फिगर था तो वोल्टेज ये था। अब आपका फिगर ये बन गया, तो वोल्टेज कितना रह गया? कैपिटल कम हो गया। वोल्टेज कम हो गया कि नहीं? पहले ये था, अब वोल्टेज ये रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द एक्साइटेशन, अगर जब ओवर एक्साइटेशन की जरूरत थी, अगर आपने ओवर एक्साइटेशन नहीं किया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट नहीं दे पाया। हमारा जो टारगेट था, हाँ सुन लो एक बार, टारगेट क्या था? यू हैव टू ओवर एक्साइट, अंडर एक्साइट। मीन्स अगर आपका लैगिंग पावर फैक्टर है तो आपको ओवर एक्साइट करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो क्या पता लगा? वोल्टेज मेंटेन नहीं हो पाएगा। हमें वोल्टेज अगर मेंटेन करना है तो ओवर एक्साइट, अंडर ओवर एक्साइट। लैगिंग पावर फैक्टर है तो ओवर एक्साइट, और नॉर्मल है तो नॉर्मल एक्साइटेशन, कम है तो अंडर एक्साइटेशन। और कितना कम है कितना ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं है ओवर कितना भी ओवर कर दोगे, पर्टिकुलर उतना ही ओवर एक्साइटेशन होना चाहिए। ठीक है गोविंद? यस। तो अब आपको पता लग गया एज ए पावर इंजीनियर योर रोल इज टू ओवर एक्साइट और अंडर एक्साइट और नॉर्मल एक्साइट पर्टिकुलर अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच लैगिंग और लीडिंग इज देयर लोड। एंड इफ यू फेल्स टू डू इट, अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा? द वोल्टेज विल नॉट बी रिमेन कांस्टेंट। तो वोल्टेज को कांस्टेंट करना है तो कंटिन्यूअसली ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन कंटिन्यूअस करना है। इसका मतलब क्या? कंटिन्यूअस करना है तो कैसे करोगे? ये जो फील्ड है वाइंडिंग,
ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, ऐसा तो होता है। फील्ड की करंट बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस आपकी कंट्रोल होनी चाहिए फील्ड करंट। फील्ड करंट कंटिन्यूअस कंट्रोल होना चाहिए, किसको सेंस करके? लोड को सेंस करके, उसकी वोल्टेज को सेंस करके। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? तो ये आपको ये कैसा करेंगे, देयर इज वन कंप्लीट चैप्टर, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। नंबर 2, अब पावर आपने देखा, पावर इज इक्वल टू ईवी बाई एक्स साइन डेल्टा। तो इफ ई एन दिस, ये आपने कंट्रोल कर ही लिया। अब आपको पावर इज इक्वल टू दिस और डी डेल्टा बाई डी टी। डी डेल्टा क्या, पावर एंगल, ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो आपका डेल्टा एक पर्टिकुलर एंगल पे 50 डिग्री पे अगर रन कर रहा है और उस समय फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, डेल्टा 0 इंटू टी, डेल्टा 0 इंटू टी एफ डी टी, डेल्टा 0 इज इक्वल टू एफ डी टी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, पावर एंगल, एक्टिव पावर जितना, अगर आपने देखिए एक्टिव पावर आपका 100 मेगावाट है और 100 मेगावाट आउटपुट है, एंड एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब अगर आपने एक्टिव पावर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे आएगा। कैसा आएगा, इसको अभी हम जस्ट समझने की कोशिश करते हैं। यस प्लीज, नाउ सी, अभी तक जो हमने आपको बताया, दिस इज जनरेटर। हमारा जो सिस्टम होता है, दिस इज जनरेटर। जनरेटर इज रन बाई टरबाइन। टरबाइन में कहां से आ रहा है, ये फ्यूल आ रहा है, ये कंट्रोल वाल्व है, यहाँ से फ्यूल आ रहा है। तो ये जब फ्यूल आ रहा है, यहाँ से फ्यूल मीन्स फ्यूल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू योर मैकेनिकल एनर्जी। दिस मैकेनिकल एनर्जी गोइंग टू रोटेट द rotor. Rotor can be cylindrical or it can be salient pole. Any type of rotor is there. When this rotor is rotating in the field कहाँ से आ रहा है, ये एक्साइटर है, दिस इज एक्साइटर, यहाँ से आपका फील्ड आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर रोटर रोटेट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ आपका वोल्टेज मिलेगा, 3 फेज वोल्टेज आपको मिल गया। एंड दिस वोल्टेज मे बी एट से 11 kV, इट कैन बी 15 kV, इट कैन बी 25 kV, किसी वोल्टेज पे जिस पे भी आपने वोल्टेज जनरेट किया है वो वोल्टेज हो गया। नाउ ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर ग्रिड में डिपेंडिंग अपॉन 25 kV टू 110 kV और 220 kV आपने ग्रिड में आपने दे दिया। दिस 220 kV और वट एवर मे बी इट कंसिडर एज 1 पर यूनिट। ग्रिड का 220 kV यहाँ 1 पर यूनिट हो गया, यहाँ का अगर 25 kV 25 kV 1 पर यूनिट हो गया। तो दैट नाउ, तो यहाँ से जो आपका मैकेनिकल है, अब देखिए थोड़ा सा समझने की बात है, जो आपका ये फ्यूल आ रहा है केमिकल एनर्जी, तो क्या इन द नॉर्मल रनिंग कंडीशन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटर? रोटर की स्पीड कितनी होगी? अगर आपकी 2 पोल मशीन है तो और 4 पोल मशीन है तो कितनी स्पीड होगी? 4 पोल मशीन है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? 120 f/p। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए 4 पोल मशीन है अगर, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? 1500 आरपीएम। और अगर 2 पोल मशीन है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3000। तो नाउ इसकी जो 1500 आरपीएम स्पीड है, एकदम से 0 से 1500 आरपीएम तो नहीं पहुंच जाएगी। जब आप जनरेटिंग स्टेशन को जस्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है? तो उसमें जब टाइम लगता है, इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो एकदम से 1500 आरपीएम नहीं होगी। पहले स्पीड कितनी होगी? 0 स्पीड होगी। 0 से 15 पहुंचने में, 0 से 15 स्पीड पहुंचने में ये क्या करेगा? जो रोटर होगा, सिलेंडर होगा, सिलेंडर का साइज कितना होगा पता है? कितना बड़ा साइज होगा? अगर आपका
250 MVA है, पानीपत थर्मल पावर प्लांट का 250 MVA का जनरेटिंग स्टेशन है। सिलेंडर कितना बड़ा होगा, रफ आइडिया बताना। अभी देखा कभी जनरेटिंग स्टेशन आपने, विजिट किया था पानीपत थर्मल है, किया कभी नहीं विजिट किया? तो द सिलेंडर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग, बिगर देन दिस रूम। तो अब एंड उसका इनर्शिया कितना होगा, तो जब ये जीरो स्पीड पे था, जीरो स्पीड से 1500 RPM और 3000 RPM पहुंचने में क्या होगा, ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा। जैसे ये घूम रहा होगा, जब जीरो से वहां पहुंचेगा तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, व्हाट इज द फॉर्मूला। कोई भी सिलेंडर है जब वो घूम रहा है किसी स्पीड पे तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, पढ़ा हुआ पहले कभी? हाँ भाई, फॉर्मूला क्या है, 12th में ही पढ़ते हैं ये। अगर लीनियर मोशन है तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, v वेलोसिटी से m मास मूव कर रहा है तो कितनी एनर्जी करता है, हाफ m। अच्छा, और रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज, आई क्या है, हाँ। तो इसमें हाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होने की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बहुत हाई होगा और इसमें एनर्जी स्टोर होगी, इतनी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जब वो स्पीड 1500 पिकअप कर लेगा उस समय इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही होती हैं। एनर्जी ये स्टोर भी कर रहा है अपने पास रोटर के अंदर, एनर्जी रोटर, नॉट ओनली रोटर में टरबाइन में ओवरऑल एनर्जी स्टोर होती है। केमिकल एनर्जी जब इसमें जाती है तो यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो स्टोर हो गई और दैट इज इक्वल टू हाई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ए वेरी बिग एनर्जी, large amount of energy, and that energy is stored after that or in simultaneously आपका फिर ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज हो गई। उसके बाद क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो गई, फिर क्या होगा, फिर जो ये फ्यूल आ रहा है वो कहाँ जाएगा, फ्यूल तो फिर भी जा रहा है ना, फ्यूल जा रहा है टरबाइन के अंदर और टरबाइन उसको क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस ग्रिड में जाएगी, वो क्या होगा, फिर वहां से आप कंज्यूमर यूज करेगा। तो ये हमें एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब क्या हुआ, दो पार्ट हो गए, ध्यान रखने की बात है, दो पार्ट हो गए। एक तो एनर्जी जब यहाँ से फ्यूल जाएगा उसके दो पार्ट हैं, एक तो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है, दूसरी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी हियर इन द रोटर एंड अनदर इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गोइंग टू द ग्रिड। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? एनर्जी के दो पार्ट हो गए, काइनेटिक एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई, रोटर में, दूसरा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर आपका ग्रिड में जा रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल, अब देखिए उस टाइम जब इलेक्ट्रिकल में जा रहा है उस टाइम इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। मतलब क्या हुआ, जितना डिमांड है, अगर आपका डिमांड 100 मेगावाट है तो उस समय नॉर्मल रनिंग कंडीशन में इनपुट कितना होना चाहिए, 100 मेगावाट। आउटपुट प्लस लॉसेस दोनों मान लो, आउटपुट में आपका जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और लॉसेस है दोनों, वो दोनों ही आउटपुट है। तो ये जो 100 मेगावाट का डिमांड और लॉसेस है वो 100 मेगावाट ही आपकी यहाँ से जाना चाहिए। तो उस टाइम 100 मेगावाट शुड बी इक्वल टू डिमांडेड 100 मेगावाट, मतलब इनपुट 100 मेगावाट शुड बी इक्वल टू द 100 मेगावाट डिमांडेड। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? अब और जब 100 इनपुट है 100 आउटपुट है और इसकी एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जितनी भी स्टोर करनी है उसने स्टोर कर ली। ओके, नाउ यू टेल इफ इन प्लेस ऑफ, अब आपको सोचना है पावर इंजीनियर, इन प्लेस ऑफ 100 मेगावाट यहाँ आपकी डिमांड 110 मेगावाट हो गई, देन व्हाट विल हैपन?
इधर से तो 100 मेगावाट के अकॉर्डिंगली फ्यूल आ रहा है। फ्यूल जो आ रहा है वो 100 मेगावाट कैसा आ रहा है, उसको केमिकल में और मैकेनिकल में जब कन्वर्ट कर देगा, टरबाइन पावर में कन्वर्ट कर देगा, वो 100 मेगावाट की होगी। लेकिन आपका यहाँ ये 110 डिमांड हो गई है वाट में लेते। हाँ भाई, कौन बताएगा? लास्ट खड़े हो, अरे ये लास्ट वन। हाँ खड़े हो, हाँ बताओ। माइक दो, इधर आओ, इधर आ। माइक लेके जा रहे। हाँ भाई देखो, कॉमन सेंस से बताना आपको। यहाँ 100 मेगावाट यहाँ से, हाँ 100 मेगावाट केमिकल एनर्जी, यहाँ केमिकल एनर्जी इतना आ रहा था कि वो 100 मेगावाट जनरेट करे, और इसमें 100 मेगावाट आउटपुट था। इसमें कुछ एनर्जी स्टोर थी इनर्शिया में। अभी 100 की जगह, एक सेकंड, 100 की जगह 110 आ गया और इधर से 100 ही आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन? रिपीट करना है वही तो सुनो। ये जो एनर्जी आ रही थी केमिकल एनर्जी, उसके दो पार्ट थे जैसे मैंने अभी बताया। एक तो इसमें स्टोर कर लिया था इसने, फिक्स स्पीड पे 50 हर्ट्ज पर स्टोर कर लिया जितनी भी एनर्जी थी। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड के अकॉर्डिंगली इसमें कन्वर्ट कर, इलेक्ट्रिकल में करना, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ये पावर आ रही थी वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इधर जा रहा है, कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। अब इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, उस समय जितनी स्टोर होनी थी हो गई। उसके अलावा 100 मेगावाट इधर से इनपुट हो रही है टरबाइन पावर, इधर से 100 मेगावाट आउटपुट हो रही है। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जितनी स्टोर है उतनी स्टोर रहेगी, और फ्रीक्वेंसी उस समय 50 हर्ट्ज है। अब यहाँ 100 की जगह 110 हो गया। डिमांड मतलब आपकी इंडस्ट्री आपने स्टार्ट कर दिया स्विच ऑन, और 100 की जगह 110 मेगावाट आ गई। तो और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, फ्यूल तो उतना ही जा रहा था जितना जाता, डिमांड आपकी 110 हो गई, तो क्या होगा? कौन सा ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कौन सा आएगी? स्टोर में से आएगी, तो स्टोर आएगी। तो क्या होगा? स्टोर से आएगी तो क्या होगा सर? ये इसकी जो सरप्लस एनर्जी थी सर, जो सरप्लस एनर्जी जो बची हुई थी सर, वो सरप्लस नहीं, स्टोर एनर्जी। हाँ सरप्लस ही कहते हैं सर वो। नहीं सरप्लस क्यों? स्टोर है उसकी, सरप्लस तो एक्स्ट्रा हो गई, एक्स्ट्रा नहीं है, वो काम की है। हाँ स्टोर एनर्जी है। हाँ सर उससे सर वो इनटेक कर लेंगे सर, लोड तो क्या होगा फिर? तो जो डिमांड थी सर वो पूरी हो जाएगी। फिर उससे फर्क क्या पड़ेगा? डिमांड पूरी हो गई तो फिर चलता रहेगा। पता नहीं सर। अब जैसे सपोज करिए आप सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हो, फिक्स अमाउंट है, ठीक है, और ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, और पूरे दिन में जो कुछ भी काम करते हो, ठीक है। तो अब आपका जो भी इंटेक था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी इंटेक था, वो हमने बढ़ा के, वो तो जितना है, जितना आप अभी कंज्यूम कर रहे हो उतना ही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो आपका वर्कलोड था, जैसा आप हॉस्टल से यहाँ आ रहे हो, फिर मार्केट जा रहे हो, सारे जो भी काम कर रहे हो, वो आपका वर्कलोड ट्वाइस कर दिया। वर्कलोड ट्वाइस कर दिया मतलब आपका जो वेट है, अभी आप 1 kg ला रहे हो, 10 kg रख दिया आपके फीट पे, ठीक है। ऐसे ही जो आपका अभी पैदल आ रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, मतलब वर्कलोड आपका बढ़ा दिया और इनपुट उतना ही रखा, तो क्या होगा? पहले दिन क्या होगा? मतलब पहले दिन एक्स्ट्रा काम का आएगा, जितना आप ले रहे थे इंटेक, जितना खा रहे थे उतना आप काम कर रहे थे। लेकिन अब फर्स्ट डे आपका वर्कलोड बढ़ा दिया, आज ही समझ लो आपका, आज अगर बढ़ा दिया तो आज आपको क्या फर्क पड़ेगा? वो आप मतलब स्टोर एनर्जी जो आपके पास है, ऐसा तो नहीं एकदम से कोलैप्स कर जाएंगे, जो आपके पास स्टोर एनर्जी है वहां से वो ले लेगा, लेकिन काम तो कर पाओगे ना। फिर अगले दिन क्या होगा सर? वीकनेस आएगी तो क्या होगा? उसमें से वीकनेस आएगी तो मतलब जो स्टोर थी वहां से लेता रहेगा, कब तक ले पाएगा? जब तक स्टोर करेंगे, स्टोर खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर वही से मतलब स्टोर खत्म हो गई, फिर कहाँ क्या होगा? मर जाएगा। जब आपकी स्टोर है ही नहीं, मतलब आप कितने दिन ऐसा काम कर सकते हो? 1 दिन 2 दिन 10 दिन कितना कर पाओगे? जितनी स्टोर है सर उतना कर पाएंगे। जितनी स्टोर है, तो जितनी स्टोर है
उतना आप कर पाओगे। उसके बाद और स्टोर किस बात पर डिपेंड करता है? स्टोर किस बात पर डिपेंड कर रहा है? मतलब अब जैसा देखिए, आप हो सकता हो 10 दिन तक मैं आप स्टोर एनर्जी से काम चलाओ, कोलैप्स हो जाओ। कोई हो सकता है 1 महीने तक डबल लोड ले सकता है, कोई हो सकता है 2 महीने तक ले सकता है। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? अलग अलग है कि नहीं सिचुएशन? किस बात पे डिपेंड कर रहा है? हाँ भाई, कौन बताएगा? देखिए प्लीज लिसन, जैसे आप 10 दिन तक डबल लोड पे काम कर सकते हो, कोई आदमी 1 महीने करेगा, कोई 2 महीने। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? स्टोर एनर्जी स्टोर एनर्जी करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टोर और स्टोर एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? स्टोर आपको नहीं ज्यादा स्टोर करके रख रहे हो, वो क्यों? मतलब आप पहले से क्यों नहीं ज्यादा स्टोर करके रख रहे हो, वो क्यों नहीं? कैपेसिटी कैपेसिटी। तो ये स्टोर एनर्जी इसमें, इसकी स्टोर एनर्जी इसमें कहाँ है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है क्या नहीं है? तो ये इस पे डिपेंड करेगा, इसके अंदर स्टोर, पहले तो इस पे डिपेंड करेगा स्टोर एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जितनी स्टोर एनर्जी होगी वो 1 मिनट में, 2 मिनट में, जब तक भी इसकी स्टोर एनर्जी को लेकर इनपुट इक्वल टू आउटपुट पूरी करने की कोशिश करेगा। स्टोर एनर्जी कम होगी स्टोर एनर्जी कम होगी तो एक तो अगर आपने इसकी सारी एनर्जी ले ली तो जैसा आपको पता है, सारी एनर्जी ले ली तो ये कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स का मतलब क्या हुआ? कोलैप्स जानते हो क्या होता है? इसमें तो आपने कह दिया कोलैप्स का मतलब क्या है। आपने क्या कहा अभी? कोलैप्स करेगा मतलब मर गया। तो ये कैसे मरेगा? कोलैप्स करने का मतलब क्या है? क्या करेगा? फॉल्ट नहीं। कोलैप्स करने का मतलब क्या हुआ? माइक बंद हो गया सर, रुक जा आपका। तो इट विल लूज द सिंक्रोनिज्म। मतलब क्या होगा? कोलैप्स का मतलब जो अभी क्या था, रोटर और रोटेटिंग फ्लक्स, ये रोटेटिंग फ्लक्स है, ये रोटर है जो ऐसे घूम रहे थे, वो कोलैप्स होने का मतलब ये अपना घूमेगा, ये अलग, इनका आपस में खत्म हो जाएगा। मतलब इसकी एनर्जी 50 हर्ट्ज रही नहीं गई, धीमे 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 बंद होगा, ये फ्लक्स घूम रहा, रोटर स्टार हो गया, तो ये कोलैप्स कर देगा। मतलब इट विल लूज द सिंक्रोनिज्म। और ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है इसकी स्टोर एनर्जी कितनी थी। और स्टोर एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था? आप आई पे डिपेंड, घूमेगा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब जितना बड़ा सिलेंडर होगा रोटर, जितना हैवी होगा उतना उसने एनर्जी ज्यादा स्टोर की होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर की उतने समय तक के लिए ज्यादा दे पाएगा। लेकिन कोई भी सिलेंडर कितना भी एनर्जी स्टोर कर लो, इनफाइनाइट तो ले नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको इमीडिएटली कुछ एक्शन लेना है कि आपकी इनपुट शुड इंक्रीज फ्रॉम हियर। इनपुट आपकी यहाँ से बढ़ जानी चाहिए, ठीक है कि नहीं है? एंड सो दैट if you are not taking this into care, means input is not going to equal to the output, then system is going to be collapse after a short duration or long duration, depending upon what is the stability of the system, or what is the stored energy of the system, or what is the design of the energy. ठीक है? तो to maintain a constant frequency, or to maintain the stability of the system, or to maintain the input is equal to output, we have to have some provision that this fuel entry should be continuously changed. जैसे वहाँ क्या बताया था आपको? वहाँ क्या बताया था? To maintain the constant voltage, क्या कहा था? एक्साइटेशन हमें कंट्रोल करना है। और यहाँ क्या था? To maintain the constant frequency, क्या कंट्रोल करना है? फ्यूल को कंट्रोल करना है कंटिन्यूअस। 2 पॉइंट क्लियर हो गए? हो गए? ये कैसे करते हैं ये अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नहीं? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? हाँ भाई, नो? थैंक यू वेरी मच।